Hello everyone, this is CS Swapnil Mehta from Bhavnagar, and in this video I'll be teaching you the important amendments applicable for May 2021 examination of CA Intermediate. CA Intermediate students, those who have studied or those who have appeared their examination in November 2020 or those who have opted out for November 2020 and attended their examination in January 2021, they have not cleared, they could not clear their examination in January or November, that is in the previous examination. Now in this attempt, for you guys, the assessment year 2021-22 is applicable. So when you would have taken your coaching, you would have studied the assessment year 2020-21, but now for May 2021 examination and even November 2021 examination, the assessment year 2021-22 is applicable. So friends, अगर कोई वीडियो देख रहा है तो उन लोगों को ये वीडियो देखनी है कि जिन्होंने नवंबर 2020 में या तो जनवरी 2021 में एग्ज़ाम दे रखी है जब उनको एप्लीकेबल था असेसमेंट ईयर 2020-21, बट अभी जो मई 2021 में आपकी एग्जामिनेशन होने वाली है उसमें अमेंडमेंट्स उसमें जो एप्लीकेबल असेसमेंट ईयर है दैट इज असेसमेंट ईयर 2021-22, तो उसके पेपर 4A के इनकम टैक्स के अमेंडमेंट्स सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ. Okay friends, so please pay concentration. I'll be taking a series of video lectures for amendment because the number of amendments are very large, number of amendment is very huge, so it is not possible for me practically to cover up all the amendments in one video. And if you know, the most major amendments, the most you can say the most significant amendment is section 115 BAC that I am not covering in this video. So if you are watching this video with a view to obtaining knowledge about section 115 BAC, then I am requesting you can wait for my next video or next to next video in which I'll be covering section 115 BAC. Okay, so in this particular video, what are the topics I am covering for amendments or what are the chapters I am covering for the amendments? So there are three chapters there are three chapters, the amendments of which I'll be taking in this video. Okay, one is residential status, number 2 is salary, and number 3 is PGBP, profit and gains from business and profession. As far as salary and PGBP are concerned, there are no major amendments, but only one or two amendments are there which I'll take up in this video only. But mainly I'll be focusing about a major amendment in residential status chapter. ओके फ्रेंड्स, सो लेट अस बिगिन. हम शुरू करते हैं अपने अमेंडमेंट्स पढ़ना. मेरे पास यहाँ पे एक जो अमेंडमेंट की शीट मैंने बना के रखी है, तो वो अगर आप लोगों को चाहिए तो यू कैन आस्क फ्रॉम मी. द ड्रीमैक स्टूडेंट्स दे विल बी गेटिंग दिस अमेंडमेंट शीट इन देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स, और इवन इफ समवन हैज़ नॉट गॉट इट येट, दे कैन डेफिनेटली टेक्स्ट मी or they can WhatsApp me and get this amendment sheet from me. Okay, so first of all I am discussing about amendments from the chapter residential status. Amendment from the chapter residential status. So the major amendment that in the chapter residential status is, we can discuss in two parts. Section 6(1)(a) read with section 6(6)(d) and number 2 section 6(6)(c) read with explanation 1b of section 6(1). Now friends, if you'll try to mug up the section number, then it is of no use. वो कोई काम का नहीं है. सेक्शन नंबर रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर में आप याद रखो वो इतना सारा इंपॉर्टेंट नहीं है. पर फ्रेंड्स, जो अमेंडमेंट है वो 2 पार्ट्स में है और एक रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे सेक्शन नंबर दे रखे हैं. आप देख सकते हैं कि मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, पर मैंने जो टाइटल दिया है, द टाइटल इज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट. रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, उसके लिए ही ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल है और नई प्रोविजंस जो आई है वो समझनी है. ठीक है, तो पहले आपको लगेगा कि सर ओके, तो कोई ऐसा हो चुका है कि जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रेसिडेंशियल स्टेटस, उसमें कोई मेजर चेंजेस है? द आंसर इज नो. जितना आपने रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ा है वो एज इट इज एप्लीकेबल है. मतलब आप जो बेसिक कंडीशंस पढ़ रहे थे वो बेसिक कंडीशंस एज इट इज है. अगर आप 2 में से एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो आप बन जाते हो रेसिडेंट, वो भी एज इट इज है. अगर आप दोनों बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते तो आप बन जाते हो नॉन रेसिडेंट, एज इट इज.
अगर आप दो में से एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर लो तो आप हो जाओगे रेसिडेंट। फिर आपको देखना होगा अगर आप रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या फिर आप रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। वो चेक करने के लिए, वो वेरीफाई करने के लिए हमारे पास है 2 एडिशनल कंडीशन। इफ यू सेटिस्फाई बोथ द एडिशनल कंडीशंस देन यू बिकम रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। इफ यू सेटिस्फाई either one or none of the additional conditions then you become resident but not ordinarily resident. So friends, those rules are as it is, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो सर चेंज है क्या? चेंज कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है कि रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट बनने के लिए और 2 ग्राउंड्स डाल दिए गए हैं। मतलब और 2 कंडीशंस और 2 ग्राउंड्स में आप फॉल हो जाओ, आइदर दिस और दिस, तो आप डीम्ड माने जाओगे रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। मतलब देखो, मैं जो ये दोनों केसेस समझाने वाला हूं उसके पहले मैं आपको इतना बता दूं कि अगर ये नई प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होती तो जो पर्टिकुलर असेसी के लिए हम रेसिडेंशियल स्टेटस फाइंड करते वो बन जाता नॉन रेसिडेंट, वो अदरवाइज तो बन जाता नॉन रेसिडेंट। बट बिकॉज दिस 2 प्रोविजंस आर देयर, वो नॉन रेसिडेंट नहीं। अगर ये दोनों प्रोविजन में से किसी एक प्रोविजन की सारी कंडीशंस क्यूमुलेटिव कंडीशंस वो बंदा अगर सेटिस्फाई करता है, वो असेसी अगर सेटिस्फाई करता है, then he becomes resident but not ordinarily resident, though either this और दिस। बट अगर ये पार्ट में अगर वो फॉल रहा है तो इसकी उस फॉल हो रहा है तो इसकी उसको सारी कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। अगर वो ये साइड के पार्ट में फॉल हो रहा है तो इसकी भी उसको सारी कंडीशंस सेटिस्फाई करनी है। ठीक है, चलो हम देख लेते हैं कि क्या है वो कंडीशंस। सबसे पहले सेक्शन 6 1A रेड विथ सेक्शन 6D वाला पार्ट जो है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ओनली इफ ही डज नॉट सेटिस्फाई बोथ द बेसिक कंडीशंस। मैंने पहले क्या लिख दिया है कि ओनली इफ ही डज नॉट सेटिस्फाई बोथ द बेसिक कंडीशन, क्योंकि अगर कोई पर्सन है, कोई असेसी है, ही इज सेटिस्फाइंग एनी ऑफ द बेसिक कंडीशन, देन anyways he is going to be resident, and if he is becoming a resident then he will be resident and ordinarily resident or resident but not ordinarily resident। तो अगर वो दो में से एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर दे रहा है तो उसके लिए तो बिल्कुल ये प्रोविजंस है ही नहीं। उसको तो जो नॉर्मल वे से रेसिडेंशियल स्टेटस फाइंड करते हैं वही वे से करना है। बट इफ अ पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइंग बोथ द बेसिक कंडीशन, यू विल से सर हमने ऐसा पढ़ा है कि अगर कोई बंदा नन ऑफ द बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करता है, मतलब कोई भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, देन वी कॉल हिम अ नॉन रेसिडेंट। ओके, वही है, बट उसमें अभी एक चेंज है। आपको एक नई चीज जो है वो देखनी है, आपको वेरीफाई करना है कि क्या वो ये क्यूमुलेटिव कंडीशंस, ये 3 क्यूमुलेटिव कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये और ये एंड है इन तीनों के बीच में। मतलब ये तीनों कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है, फिर भले वो बोथ द बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हम उसको बोल देंगे रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, RBNOR। पर सर कोई भी बेसिक कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करता तो वो कैसे रेसिडेंट? वही डीमिंग फिक्शन जो ये प्रोविजन है वो डाल रही है, मतलब आपको डीम कर देना है कि वो बन जाएगा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। यस, तो चलो हम देखते हैं वो 3 कंडीशन कौन कौन सी है। कंडीशन नंबर 1 is that he is an Indian citizen. He is an Indian citizen. Condition number 2, his total income, focus on the word total income. They have not said gross total income, they have said total income. So for calculating that you will have to consider the deduction under section 80C to 80U. Deduction under section 80C to 80U chapter 6A के deduction consider करने के बाद जो income आती है उसकी बात कर रहे हैं। and important point is given in the bracket excluding the foreign income, मतलब उसमें आपको foreign income count नहीं करनी है, आपको Indian income ही consider करनी है, foreign income नहीं consider करनी है। So his total income excluding the foreign income exceeds rupees 15 lakh in the previous year. So अगर उसकी टोटल इनकम प्रीवियस ईयर में 15 लाख से एक्सीड हो जा रही है, अगर उसकी टोटल इनकम प्रीवियस ईयर में जो है वो 15 लाख से एक्सीड कर रही है, पर कौन सी वाली टोटल इनकम? एक्सक्लूडिंग द फॉरेन इनकम, then he satisfies the second basic condition. And number 3 is what? Number 3 is he is not liable to tax in any other country. He is not liable to tax in any other country because of the domicile or whatever the agreement existing between two countries or whatever the purpose, whatever the reason is. But he is not liable to tax in any other country.
Okay, if you satisfy these three conditions cumulatively, then that person is said resident but not ordinarily resident. अब ये तो आपको पढ़ने, अगर आप पढ़ने बैठो तो भी आपको समझ में आ जाए, बट व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? सर क्या लॉजिक है इस प्रोविजन का? तो प्रोविजन का लॉजिक ये है कि बहुत सारे लोग जो है वो ऐसे हैं कि दे आर वर्किंग इन अ कंट्रीज लाइक दुबई और मॉरिशस, जो कंट्रीज टैक्स हेवन है, जो कंट्रीज टैक्स हेवन है, वहाँ पे उन लोगों के पास से जो आप टैक्स जो है वो नहीं ले सकते, उन लोगों की वहाँ की इनकम पे वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो टैक्स नहीं लेती। प्लस वो ऐसे लोग हैं कि जो इंडिया में बहुत सारी इनकम अर्न कर रहे हैं, बट समहाउ दे आर नॉट ट्रेसेबल बिकॉज दे आर कंसिडर्ड एज नॉन रेसिडेंट्स, और बिकॉज नॉन रेसिडेंट्स बन जाते हैं तो मोस्टली उनकी फॉरेन इनकम जो है वो सब टैक्सेबल नहीं हो पाती। और बिजनेसेस जो वो कंट्रोल करते हैं और मैनेज करते हैं फ्रॉम इंडिया, उसकी इनकम जो है वो हम जानते हैं कि नॉन रेसिडेंट को टैक्सेबल नहीं है, बट रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट को तो टैक्सेबल है। सो गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि भाई जो बंदा दूसरी कोई कंट्री में काम कर रहा है, इंडिया में नहीं रह रहा, अभी देखो अगर वो इंडिया में रह रहा होता तो वो वन ऑफ द बेसिक कंडीशन ही सेटिस्फाई कर लेता। अगर ही स्टेइंग इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर तो वो एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर ही लेता, पहली बेसिक कंडीशन, और वो ऑटोमेटिकली वैसे भी बन जाता रेसिडेंट। यस, और मान लो वो इंडिया में 60 डेज रहा है और उसके पहले के 4 प्रीवियस ईयर में, प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर्स में अगर वो 365 डेज और मोर इंडिया में रहा है तो भी वो बन जाता रेसिडेंट। पर वो रेसिडेंट नहीं बन रहा है, इज नॉट सेटिस्फाइंग एनी ऑफ द बेसिक कंडीशन। तो इसीलिए हम सोच सकते हैं कि वो इंडिया में तो नहीं रह रहा, ही स्टेइंग समवेयर आउटसाइड इंडिया, बट ही इज एन इंडियन सिटीजन, ओके, फ्रॉम इंडियन सोर्सेज, दैट वी कैन से from the land of India. He is receiving income of more than rupees 15 lakh in the previous year. He is receiving income of more than rupees 15 lakh in previous year, and he is not liable to tax in any other country. So friends, अभी इंडियन गवर्नमेंट ने बोला नहीं भाई, तो हम आपको नॉन रेसिडेंट नहीं बोलने वाले, हम आपको बोल देने वाले रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। और आपके ऊपर जो टैक्स इंसिडेंस फॉल होगा वो ऐसे ही होगा, आपके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो ऐसे ही लगेगा जैसे लगता है एक रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट के केस में। ठीक है, ओके। नाउ ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट, मोर इंपॉर्टेंट और थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, वो है सेकेंड पार्ट, विच इज सेक्शन नंबर, वी कैन से विच इज सेक्शन नंबर 66C, रेड विथ एक्सप्लेनेशन 1B ऑफ सेक्शन 61। ओके, ये वाला पार्ट जो दूसरा मतलब अमेंडमेंट का पार्ट है, वो मुझे समझाने से पहले आपको कुछ चीज़ें क्लियर करनी पड़ेगी। एक क्लियर वही करना है कि जैसे यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई करके एसएससी बन गया था रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, यहाँ भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद एसएससी बनने वाला है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। ओके, तो ये कंडीशंस, उसके पहले आपको कुछ याद करना पड़ेगा, आपको याद करने पड़ेंगे कुछ स्पेशल केसेस। हम पढ़ते हैं अपने रेसिडेंशियल स्टेटस में कुछ स्पेशल केसेस, वो स्पेशल केसेस में अगर कोई बंदा फॉल होता है, कोई एसएससी फॉल होता है, कोई इंडिविजुअल एचयूएफ फॉल होता है, कोई इंडिविजुअल फॉल होता है, तो वो नॉट एचयूएफ सॉरी इंडिविजुअल फॉल होता है, तो हम वो इंडिविजुअल के लिए ऐसे बोलते हैं कि उसको बेसिक कंडीशन नंबर 2 एप्लीकेबल नहीं होगी, उसको सिर्फ बेसिक कंडीशन नंबर 1 ही एप्लीकेबल होगी। मतलब फर्स्ट बेसिक कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई करता है तो वो बन जाता है रेसिडेंट। अगर वो फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता तो दूसरी बेसिक कंडीशन उसके लिए है ही नहीं, तो अगर वो 182 डेज से ज़्यादा इंडिया में स्टे कर रहा है तभी वो बनेगा रेसिडेंट, वरना वो रेसिडेंट नहीं बनेगा, वो बन जाएगा नॉन रेसिडेंट। यस, वो स्पेशल केसेस कौन से केसेस में, मतलब कौन से वो स्पेशल केसेस है? तो एक है इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट और एज अ मेंबर ऑफ क्रू इन इंडियन शिप। इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया एज अ फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट और एज अ मेंबर ऑफ क्रू इन एन इंडियन शिप, तो उसको बेसिक कंडीशन 1 एप्लीकेबल है, बेसिक कंडीशन 2 एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ बेसिक कंडीशन नंबर 1 ही एप्लीकेबल है। बट दूसरा जो स्पेशल केस है वो किसके बारे में? वो है इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु कम्स टू इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ विजिट। इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु कम्स टू इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ विजिट, हम ऐसा बोल रहे हैं कि उसके लिए, वो बंदे के लिए सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है मतलब इफ दैट एसएससी सेटिस्फाइज, वो पर्सन, वो इंडिविजुअल अगर सेटिस्फाई करता है फर्स्ट बेसिक कंडीशन, देन एंड ओनली देन ही बिकम्स रेसिडेंट, अदरवाइज ही इज नॉन रेसिडेंट। बट
अभी जो ये अमेंडमेंट में जो दूसरा पार्ट है, ये जो रेसिडेंशियल स्टेटस का जो दूसरा अमेंडमेंट हम बोल सकते हैं कि जो दूसरी एक चाल है गवर्नमेंट की उनको रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनाने की, वो असेसीज को नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनाने की, वो उन्हीं लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो मैंने आपको स्पेशल केस 2 में बोला कि ही इज एन इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड ही कम्स टू इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ विजिट. He is an Indian citizen or person of Indian origin and he comes to India for the purpose of visit. तो उसके लिए एप्लीकेबल है. ओके तो सारे इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स टू इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ विजिट उनके लिए एप्लीकेबल है नहीं. अगेन तीसरा तो ये पॉइंट सिमिलर है ये पार्ट के जैसा ही, दैट हिज टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग द फॉरेन इनकम एक्सीड्स ₹15 लाख इन द प्रीवियस ईयर. तो जैसे यहाँ पे समझा है वही है, वर्ड है टोटल इनकम, मतलब ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन कंसीडर कर देना है. तो इसकी टोटल इनकम जो है एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम एक्सीड्स ₹15 लाख इन द प्रीवियस ईयर. ओके नॉट ओनली दैट, ये 3 कंडीशन तो सेटिस्फाई करे, उसके बाद उसको एक दी है अलग से एक स्कीम जो है कंडीशन नंबर 4. तो वो अगर ये कंडीशन नंबर 4 भी सेटिस्फाई कर रहा है ना तो वो बन जाएगा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट. अभी आप सोचो एक मिनट के लिए ये भूल जाते हैं. अभी आप सोचो बेसिक कंडीशन नंबर 2 क्या है? बेसिक कंडीशन नंबर 2 क्या है? रेसिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट डिसाइड करने के लिए बेसिक कंडीशन 2. सो बेसिक कंडीशन नंबर 2 इज दैट इंडिविजुअल हैज टू स्टे इन इंडिया फॉर 60 days or more in previous year and he has to stay in India for 365 days or more in 4 years preceding the previous year. Yes, so 60 days or more in preceding previous year, 60 days or more in previous year and 365 days or more in 4 years preceding the previous year. अगर वो दोनों पार्ट सेटिस्फाई करता था तो हम बोल देते थे कि भाई ये सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल करता सेटिस्फाई कर रहा है और उसको हम बोल देते थे रेसिडेंट. अभी ये तो वो केस है कि इंडियन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स टू इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ विजिट, उसके लिए सेकंड बेसिक कंडीशन तो एप्लीकेबल ही नहीं है. तो गवर्नमेंट ने सेकंड बेसिक कंडीशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसकी एक रेप्लिका प्रिपेयर करके उसके लिए एप्लीकेबल कर दिया है कि जिन लोगों की इनकम फॉरेन इनकम छोड़ के जो टोटल इनकम जो है एक्सक्लूडिंग द फॉरेन इनकम, जिन लोगों की टोटल इनकम 15 लाख से एक्सीड कर रही है उनको गवर्नमेंट बोल रही है कि अगर आप सेटिस्फाई कर रहे हो ये पार्ट क्या, तो ए he stays in India for 120 days or more in previous year एंड मतलब जो 60 डेज है ना अपनी सेकंड बेसिक कंडीशन में, वो 60 डेज की जगह यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 120 डेज. सो ही स्टेज इन इंडिया फॉर 120 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर एंड अब दूसरा पार्ट देखें तो ही स्टेज इन इंडिया फॉर 365 डेज और मोर इन 4 years प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर. दैट इज एग्जैक्टली द सेम दैट इज कवर्ड इन द पार्ट बी ऑफ द सेकंड बेसिक कंडीशन. समझ में आ रहा है? तो अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है और ऊपर की 3 तो क्यूमुलेटिवली सेटिस्फाई करनी ही है, तो इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ही कम्स टू इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ विजिट, हिज टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम एक्सीड्स ₹15 lakh in previous year and he stays in India for 120 days or more in previous year and he stays in India for 365 days or more in 4 years preceding the previous year, then that person automatically becomes resident. Then that person automatically becomes resident but not ordinarily resident. So मैंने जैसे बोल रखा है कि amendment from residential status वो एक ही residential status को affect करते हैं, that is regarding resident but not ordinary resident. मतलब कोई assessee जो है, कोई individual है, वो बन जाता है resident but not ordinarily resident अगर आप ये 2 में से कोई भी न्यू प्रोविजंस में फॉल हो जाते हो, इसकी क्यूमुलेटिव कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई कर देते हो. तो यस, मुझे लग रहा है कि आपको क्लैरिटी वैसे बेसिक लेवल पे तो आ गई होगी, पर 100% क्लैरिटी देने के लिए मैंने बनाए हैं 2 सम्स. अगर हम ये 2 सम्स समझ ले तो हमको दोनों प्रोविजन की 100% प्रैक्टिकल क्लैरिटी भी मिल जाएगी. तो चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. So question number 1 is about X, Mr. X, who is an Indian citizen. Currently he is in employment with an overseas company located in Dubai. तो Mr. X एक इंडियन सिटीजन है और करंटली ही इज लोकेटेड इन दुबई. वो मतलब जॉब कर रहा है एक ओवरसीज कंपनी विच इज लोकेटेड एट दुबई. ओके, ड्यूरिंग डिफरेंट ईयर्स ही इज इन इंडिया एज फॉलोज, मतलब उसका स्टे इन इंडिया अलग अलग साल में आपको दे रखा है. अभी देखो
नीचे बोल रहे फॉर द प्रीवियस ईयर 2020-21 एक्स इज नॉट टैक्सेबल इन दुबई और एनी अदर कंट्री और टेरिटरी बाय रीजन ऑफ हिज डोमिसाइल और रेसिडेंस। तो मतलब वो दुबई में टैक्सेबल नहीं है और कोई दूसरी कंट्री में भी टैक्सेबल नहीं है। ओके, इनकम ऑफ एक्स अदर देन द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज फॉर द प्रीवियस ईयर 2020-21 इज ₹16 लाख। तो फॉरेन सोर्सेज को निकाल दो तो उसकी जो इनकम है प्रीवियस ईयर 2021 की वो 16 लाख है, मतलब इंडियन सोर्सेज से टोटल इनकम। बोल रहे हैं फाइंड आउट द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22। सो अभी अपना असेसमेंट ईयर है 2021-22, तो उसके रिगार्डिंग अपना प्रीवियस ईयर जो है वो बन जाएगा प्रीवियस ईयर 2020-21, प्रीवियस ईयर बन जाएगा 2021। तो हमको देखना होगा, पहले भूल जाओ कि कोई अमेंडमेंट वगैरह है। अगर आपको सम वैसे ही दिया होता एज इट इज तो आप पहले क्या करते? तो पहले आप देखने जाते अपनी बेसिक कंडीशंस, आप देखने जाते कि हम दो में से कौन सी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, तो बस वही करना है। पहले देखो बेसिक कंडीशन नंबर 1, क्या ये पर्सन सेटिस्फाई करता है, क्या इंडिविजुअल मिस्टर एक्स सेटिस्फाई कर रहा है? तो बेसिक कंडीशन नंबर 1 बोल रही है कि ही शुड स्टे इन इंडिया, ही हैज टू स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर इन ऑर्डर टू बिकम अ रेसिडेंट। तो प्रीवियस ईयर 2021 में क्या वो 182 डेज इंडिया में रह रहा है? द आंसर इज नो। ही स्टे इन इंडिया इज ओनली 55 डेज। ही स्टे इन इंडिया इज ओनली 55 डेज। सो 55 डेज से वो फर्स्ट बेसिक कंडीशन तो नहीं सेटिस्फाई कर रहा। ओके, देख लेते हैं क्या वो सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए भी उसको 60 डेज तो मिनिमम इंडिया में स्टे करना ही पड़ेगा, बट यहाँ पे वो ओनली इंडिया में रह रहा है 55 डेज। सो ही इज नॉट सेटिस्फाइंग। सो वी कैन से ही इज नॉट सेटिस्फाइंग सेकेंड बेसिक कंडीशन ऑल्सो। सो अभी वो फर्स्ट या सेकेंड बेसिक कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। आपको ये डेटा के ये इन्फॉर्मेशन, ये डेटा देखने से ही आइडिया आ जाना चाहिए कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो टेस्ट कर रहा है अमेंडमेंट को। यस, तो अमेंडमेंट नंबर 1 जो मैंने मतलब पहला पार्ट समझा, उसमें क्या था? उसमें ऐसा था कि पर्सन होना चाहिए इंडियन सिटीजन। तो देखो ये एक्स इज एन इंडियन सिटीजन। हम 1 मिनट देख लेते हैं, चलो वो वाली प्रोविजन फिर से कि कौन सी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करनी है। तो एक्स इज एन इंडियन सिटीजन, यस। फिर हिज टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग द फॉरेन इनकम एक्सीड्स 15 लाख इन प्रीवियस ईयर एंड ही इज नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री। इंडियन सिटीजन, इंडियन इनकम हो जानी चाहिए 15 लाख से ज्यादा, फॉरेन सोर्सेज को एक्सक्लूड करके 15 लाख से ज्यादा, और इज नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री। नाउ लेट अस सी, डज दिस ऑल 3 कंडीशंस गेट सेटिस्फाइड इन आवर क्वेश्चन और नॉट? तो x is an Indian citizen, so condition number 1 is getting being satisfied. Being satisfied. The answer is yes. Number 2, his total income excluding the foreign income is exceeding rupees 15 lakh. Yes, his total income is, yes, as you can see from cursor, it is rupees 16 lakh. Yes, and condition number 3 that he should not be liable to tax. He is not liable to tax in any other country. So आप देखो x is not taxable, ऊपर for the previous year ये वाली लाइन में दिया हुआ है x is not taxable in Dubai or any other country or territory by reason of his domicile or residence. So आप कर्सर है वहाँ पे देख सकते हैं। So ये कंडीशन नंबर 3 भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो फिर भले वो कोई भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई ना करे, अमेंडमेंट अपने को ऐसा बता रहा है, अमेंडमेंट हमको ऐसी बात बोल रहा है, अमेंडमेंट हमको ये बता रहा है कि ये एसएससी मिस्टर एक्स हो जाएगा डीम्ड रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। क्लियर? तो अगर आपको एमसीक्यू फॉर्म में पूछे, अगर यह आपको 2 या 4 मार्क या 5 मार्क का क्वेश्चन बना के इंस्टीट्यूट पूछे तो आपको ये आना चाहिए। अगर ये आपको 2, 4, 5 मार्क के क्वेश्चन में पूछते हैं तो आपको फिर वो जो कंडीशंस है वो भी आपको प्रॉपरली लिखनी पड़ेगी, जो आप अपडेटेड मॉड्यूल में से भी देख सकते हैं। उसमें भी बहुत अच्छी तरह से आपको वो कंडीशंस वगैरह दे रखा है, ठीक है। और या फिर आपने मैंने जैसे ये अमेंडमेंट शीट में प्रोवाइड किया हुआ है वो वर्ड्स भी आप लिख सकते हैं, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। सो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 1। अब जा रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो बेसिकली अमेंडमेंट का दूसरा पार्ट है, वो डिस्कस करेगा। पर चलो हम वो एंगल से नहीं, हम एज इफ हमको कुछ पता ही नहीं है ये क्वेश्चन के बारे में, ऐसे माइंडसेट के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। तो मिस्टर जोई इज अ फॉरेन सिटीजन, ही इज इन एम्प्लॉयमेंट विद अ मल्टीनेशनल कंपनी एंड पोस्टेड इन सिंगापुर। तो मिस्टर जोई है वो कोई फॉरेन सिटीजन है, वो एम्प्लॉयमेंट में है विद अ मल्टीनेशनल कंपनी, पोस्टेड इन सिंगापुर, ठीक है। हिज ग्रैंडफादर वाज बोर्न इन लाहौर इन 1940।
Okay, during the previous year 2020-21 he comes to India for the purpose of visit for 121 days. Okay, in earlier 4 years he is in India for more than 800 days. Joey wants to know his residential status for the assessment year 2020-21. Sorry, it should be for the assessment year 2021-22. आप इतना चेंज कर लो, वो इट इज़ नॉट फॉर असेसमेंट ईयर 2021, इट इज़ फॉर असेसमेंट ईयर 21-22. देखो यहाँ पे also calculate total income for assessment year 21-22 लिखा ही हुआ है. So this question is for assessment year 21-22, not for assessment year 2021. Okay, his annual income for the previous year 2021 is as follows. ठीक है, सो ये सारी उसकी इनकम देख रखी है और दे रखी है और बोल रहा है कि अल्सो कैलकुलेट टोटल इनकम ऑफ जोई फॉर असेसमेंट ईयर 21-22. नाउ सी, सबसे पहले तो हम भूल जाएंगे कि कुछ अमेंडमेंट जैसा कुछ है. तो चलो अमेंडमेंट नहीं है तो हम किसी का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे फाइंड करते हैं. तो एज पर सेक्शन 6 क्लॉज 1 हम इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस फाइंड करने के लिए एन इंडिविजुअल बिकम्स रेसिडेंट इफ ही सेटिस्फाइज एनी ऑफ द और आइदर ऑफ द बेसिक कंडीशन. बेसिक कंडीशन नंबर 1 इज he should be he has stayed in India for 182 days or more in the previous year. बट यहाँ पे उसने 182 days या ज़्यादा उससे ज़्यादा रहा नहीं है, इंडिया में स्टे किया नहीं है. इसने इंडिया में स्टे किया है ओनली फॉर 121 days. सो ही इज़ नॉट सेटिस्फाइंग द फर्स्ट बेसिक कंडीशन. ओके, नाउ सेकेंड बेसिक कंडीशन चेक करने से पहले हमको वो देखना चाहिए कि क्या वो स्पेशल केस में फॉलो हो रहा है. स्पेशल केस में अगर वो फॉलो हो रहा है तो उसको सेकेंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल ही नहीं है. तो यस, ही फॉल्स इन द सेकेंड स्पेशल केस. व्हाई? बिकॉज सेकेंड स्पेशल केस इज एप्लीकेबल second special case is applicable for Indian citizen or person of Indian origin who comes to India for visit. So Indian citizen और person of Indian origin who comes to India for visit, उनके लिए ही ये सेकंड कंडीशन जो है, मतलब सेकंड उनके लिए सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल ही नहीं है. उनके लिए सिर्फ एप्लीकेबल है फर्स्ट बेसिक कंडीशन. तो देखिए, क्या मिस्टर जोई एक इंडियन सिटीजन है? नहीं, वो तो फॉरेन सिटीजन है. कोई बात नहीं. क्या वो एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है? The answer is yes, because if you remember the definition of person of Indian origin, it says that a person, either he himself or either of his parents or any of his grandparents were born in undivided India. तो either individual himself या उसके कोई भी पेरेंट्स या उसके कोई भी ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुआ है, उनका बर्थ हुआ है, तो वो असेसी जो है वो बन जाता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन. आप देख सकते हो कि एक्स के ग्रैंडफादर का बर्थ हुआ था 1940 में लाहौर में. आप बोले सर लाहौर तो पाकिस्तान का पार्ट है, पर ये उन दिनों की बात है जब पाकिस्तान अपने पापा के साथ ही रह रहा था, मतलब इंडिया में ही इंडिया का ही पार्ट था. तो 1940 मतलब अपनी इंडिपेंडेंस के पहले की बात है. तो लाहौर वॉज अ पार्ट ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया और उस टाइम पे उस मिस्टर जोई के ग्रैंडफादर का बर्थ वहाँ पे हुआ था. सो येस, वी कैन डेफिनेटली से दैट मिस्टर जोई इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन. येस, एंड ही कम्स टू इंडिया फॉर विजिट. यहाँ पे दे रखा है, ही कम्स टू इंडिया फॉर विजिट ऑफ 121 डेज. येस, सो उनके लिए सेकेंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल ही नहीं है. सो मिस्टर जोई बन जाएंगे नॉन रेसिडेंट. अगर हम ये अमेंडमेंट नहीं पढ़े होते तो हम बोल देते कि मिस्टर जोई का रेसिडेंशियल स्टेटस इज नॉन रेसिडेंट. बट हमने पढ़ा है अभी एक लेटेस्ट अमेंडमेंट, उसमें ऐसा बोला है कि अगर अ पर्सन ऑफ इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स टू इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ विजिट और उसकी इंडियन इनकम एक्सक्लूड हो जाती है 15 लाख से, तो और दो कंडीशन वो सेटिस्फाई कर ले तो हम उसको बोल देंगे RBNOR. तो देख लेते इसकी इंडियन इनकम जो है वो क्या एक्सीड कर रही है. तो चलो उसके लिए तो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इसकी इंडियन सोर्स में से इनकम कितनी है. तो देखो पहले उसकी इनकम कौन सी दी है. पहले उसकी इनकम दी है इनकम फ्रॉम सैलरी, रेंट, कंसल्टेंसी एंड इंटरेस्ट अर्नड एंड रिसीव्ड इन सिंगापुर. सो सैलरी, रेंट, कंसल्टेंसी एंड इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड, अर्नड एंड रिसीव्ड कहाँ पे? सिंगापुर में. तो क्या वो इंडियन इनकम हुई? बिल्कुल नहीं, वो हो गई इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज. यस. नंबर 2, इनकम फ्रॉम बिजनेस एक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया कंट्रोल्ड फ्रॉम सिंगापुर. तो बिजनेस एक्रूड
बिजनेस जो है वो आउटसाइड इंडिया में है, कंट्रोल भी आउटसाइड इंडिया से हो रहा है, इनकम एक्रू और रिसीव भी आउटसाइड इंडिया हुई, तो वो भी क्या हो गई, वो भी हो गई फॉरेन इनकम। सो 14 लाख भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। नंबर 3, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया। हमने ऐसा देखा है कि अगर इनकम इज रिसीव्ड फ्रॉम अ प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया देन इट इज डीम्ड टू accrue or arise in India, and if it is deemed to accrue or arise in India it is considered as Indian income. So yes, this 6 lakh will count in calculating the limit of 15 lakh. This 6 lakh will consider it while calculating the limit of 15 lakh. The next point is interest on bank fixed deposit in India, which is rupees 9,50,000. So we have also studied that if the income is received from a source in India, from a property or asset situated in India, from a property or asset situated in India, from a property or asset situated in India, then it is an Indian income. So ये भी हो जाएगी Indian income. Interest on bank fixed deposit in India is considered as Indian income. So 6 lakh plus 9,50,000, so अपनी income हो गई, वो हो गई 15,50,000. Okay, so 15,50,000 हो गई, तो he is also satisfying the third part, the third condition for becoming RBNOR. Yes, because his income from other than foreign sources excludes rupees 15 lakh. Okay, अब फोर्थ पॉइंट क्या चेक करना है, तो फोर्थ पॉइंट ऐसा बोल रहा है कि उसका प्रीवियस ईयर में जो स्टे है वो 120 डेज से ज़्यादा होना, 120 डेज या उससे ज़्यादा होना चाहिए, और उसके प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर में उसका स्टे 365 डेज से ज़्यादा होना चाहिए। तो क्या ये दोनों पार्ट वो जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है? तो द आंसर इज यस, बिकॉज ही कम्स टू इंडिया, देखो फॉर अ विजिट फॉर ऑफ 121 डेज, आप कर्सर देखो तो आपको पता चलेगा कि he comes to India in previous year 2020-21 for a visit of 121 days. So he is satisfying 120 days part, and in earlier 4 years he is in India for more than 800 days. More than 800 days हो गया तो मतलब definitely 365 से तो बहुत ज़्यादा हो ही गया है. So definitely he is considered, he is satisfying that part, मतलब fourth condition also. So definitely we will say that the residential status of Mr. Joey is resident but not ordinarily resident. Will deem that he is not satisfying any of the basic condition, yet will deem that his residential status is RBNOR. This is because of the amendment. It is the amendment effect. This is because of the amendment. Mr. Joey will be considered as resident but not ordinarily resident. Resident but not ordinarily resident. Clear friends? Okay. Now मैंने आपको सब में एक और चीज़ बताई है. Also calculate the total income of Joey for assessment year 21-22. मैंने आपको वो भी बताया कि also calculate the total income of Joey for assessment year 21-22. सिर्फ रेसिडेंशियल स्टेटस नहीं पूछा. ये इसलिए मैंने बताया कि अगर आपको एग्जाम में थोड़ा ट्विस्ट करके पूछे क्वेश्चन तो आपको आंसर परफेक्टली आप दे सको. देखो उसकी टोटल इनकम, अभी टोटल इनकम जिसकी डिसाइड करनी है तो वो हम अब कौन से वाले इंसिडेंस ऑफ टैक्स के रूल्स लगाएंगे. मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको बेसिक इंसिडेंस ऑफ टैक्स आता है कि कौन सी इनकम रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट को टैक्सेबल है, कौन सी इनकम रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट को टैक्सेबल है, और कौन सी इनकम नॉन रेसिडेंट को टैक्सेबल है. ठीक है, कौन सी इनकम्स नॉन रेसिडेंट को टैक्सेबल है. तो वो रूल्स अगर आपको आते हैं तभी आपको मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आएगा. तो ये है अब इसका रेसिडेंशियल स्टेटस हो गया RBNOR, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट. तो उसकी हमें टोटल इनकम अगर फाइंड करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं? तो हम अप्लाई करेंगे रूल्स ऑफ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट वाले. तो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट वाले रूल्स कौन से हैं? तो वो बताते हैं कि जनरली RBNOR को कोई भी फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होती. इंडियन इनकम तो सारी टैक्सेबल हो जाती है, पर हाँ एक फॉरेन इनकम है जो RBNOR को टैक्सेबल होती है, विच इज फ्रॉम अ बिजनेस विच इज कंट्रोल्ड और मैनेज फ्रॉम इंडिया, और प्रोफेशन विच इज सेटअप इन इंडिया. तो वो वाली फॉरेन इनकम है वो RBNOR को टैक्सेबल हो जाती है. तो यहाँ पे देखो तो ये पहली कौन सी फॉरेन इनकम है? पहली इनकम क्या है? पहली इनकम फॉरेन इनकम है, वो उसको टैक्सेबल होगी? बिल्कुल नहीं. दूसरी क्या है? वो भी है फॉरेन इनकम एंड इट इज नॉट द बिजनेस विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, तो ये भी उसको टैक्सेबल नहीं होगी. तीसरी और चौथी जो है वो तो दोनों कौन सी? इंडियन इनकम, तो वो तो टैक्सेबल होने वाली है. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में आंसर 15,50,000 ही आएगा. इसकी टोटल इनकम का आंसर आएगा 15,50,000. बट अगर क्वेश्चन में मैं थोड़ा ट्विस्ट कर दूं और मैं क्वेश्चन में ऐसा बोल दूं कि ये इनकम फ्रॉम बिजनेस है, मैं यहाँ पे बोल दूं इट इज़ कंट्रोल्ड फ्रॉम दिल्ली, ये सिंगापुर निकाल के मैं अगर दिल्ली, मुंबई या कोई भी इंडिया के मतलब
सिटी का नाम डाल दूं, इंडियन कोई प्लेस का नाम डाल दूं, मतलब इट इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया हो गया, तो दैट 14 लाख विल ऑल्सो बी टैक्सेबल। इसमें ऐड कर देना पड़ेगा दैट 14 लाख पार्ट ऑल्सो, क्योंकि आरबीएनओआर को वो इनकम भी टैक्सेबल होती है विच इज रिसीव्ड, विच इज इवन दो इट इज फॉरेन इनकम, बट विच इज from a business which is controlled or managed from India, or profession which is set up in India. Clear or not? Business which is controlled or managed from India, or profession which business which is controlled or managed from India, or profession which is set up in India, वो इनकम भी आरबीएनओआर को टैक्सेबल होती है, तो वो भी उनको टैक्सेबल हो जाएगी। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? यस। सो दिस इज इट। ये दोनों क्वेश्चन से आई डिड माई बेस्ट, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू टीच यू all the relevant amendments or all the amendments of residential status with the examples. ठीक है फ्रेंड्स? ओके, now I am moving ahead and now I am going to teach you the amendment from the chapter salary. Amendments from the chapter salary. बेसिकली फ्रेंड्स सैलरी में एक ही अमेंडमेंट है जो आपको, और मॉड्यूल की लैंग्वेज मैंने डिट्टो यहाँ पे अपनी शीट में रख दी है, पर वो लैंग्वेज जितना आप उतना मतलब वो लैंग्वेज में टेक्निकली बहुत नहीं जाएंगे, पर मेरा ये वीडियो अगर आप देख लेंगे फिर भी आपको बहुत अच्छी तरह से क्लैरिटी आ जाएगी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ और क्या ये अमेंडमेंट आपको बताना चाह रहा है। ओके, बेसिकली अगर आपको याद हो तो प्रोविजन कुछ इस तरह से है, सैलरी हेड में प्रोविजन कुछ इस तरह से है। हम बात करेंगे यहाँ पे दो चीज़ों की बेसिकली, एक हम बात करेंगे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। तो हमने अभी तक ऐसा पढ़ा हुआ है कि अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, और इफ इट इज अप टू 12% ऑफ सैलरी, देन दैट इज एग्जम्प्ट। तो ये पॉइंट तो अभी भी एज इट इज ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। कुछ लोग ऐसे मतलब कंफ्यूजन में है कि ये पॉइंट में भी चेंज हो गया। नो, दैट पार्ट इज एज इट इज। तो आपने क्यों ऐसे बताया, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों इसकी भी बात कर रहा हूं। ये अगर एज इट इज है तो मैं क्यों इसकी बात कर रहा हूं। ओके, फिर आप लोग कुछ ऐसा पढ़ रहे थे कि इफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है इन सुपर एन्युएशन फंड फॉर एम्प्लॉई के लिए वो सुपर एन्युएशन फंड में कंट्रीब्यूट करता है, तो हम ऐसा पढ़ रहे थे कि इफ दैट कंट्रीब्यूशन इज अप टू रुपीज, if that contribution is up to rupees 1,50,000 per annum, then it is exempt. ये है पुरानी प्रोविजन, that if the employer contributes in superannuation fund up to rupees 1,50,000 per annum, then it is exempt. ये है पुरानी प्रोविजन। अभी ये प्रोविजन है वो निकल गई है, तो क्या सुपरएन्युएशन फंड में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो टैक्सेबल हो गया? द आंसर इज नो। अभी भी मतलब वो ऐसा नहीं है कि अपफ्रंट टैक्सेबल है, बट अभी जो प्रोविजन आई है वो प्रोविजन ऐसी है, जो नया अमेंडमेंट है वो ऐसा है कि वो बोल रहा है कि आप एक काम करो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के लिए बहुत सारी जगह पे कंट्रीब्यूट करता है, आप तीन उसमें से अमाउंट देख लो, मतलब तीन चीज़ों पे जो कंट्रीब्यूशन कर रखा है उसकी अमाउंट, तीन चीज़ों पे जो कंट्रीब्यूट कर रखा है उसकी अमाउंट देख लो। एक है कंट्रीब्यूशन इन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, जिसकी हमने यहाँ पे बात की, मैंने बोला ऐसे वो प्रोविजन में कोई चेंज नहीं है। अगर 12% से ज़्यादा सैलरी के 12% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है अगर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर, तो अभी भी वो टैक्सेबल हो ही जाने वाला है। बट यहाँ पे आपको क्या देखना है कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन देख लो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कितना हुआ, प्लस एम्प्लॉयर का एम्प्लॉई के लिए कंट्रीब्यूशन नेशनल पेंशन स्कीम जो एनपीएस में है वो कितना है, प्लस जो हम सुपर एन्युएशन फंड की बात कर रहे थे जिसकी पिछले साल लिमिट थी 150,000, तो वो सुपर एन्युएशन फंड उसमें एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूट किया वो भी देख लो। और ये तीनों का आप कर लो टोटल, ये तीनों कंट्रीब्यूशन का कर लो टोटल। इफ दिस इज अप टू ₹7,50,000, if the sum total of these three is up to 7,50,000, then it is considered
एग्जम्प्ट। सो वो 1,50,000 वाली लिमिट 750 हो गई है, ऐसा नहीं है। 1,50,000 था सिर्फ सुपर एन्युएशन फंड के लिए। अभी 7,50,000 जो है, 7,50,000 जो है वो आपको कंसिडर करने हैं, वो आपको कंसिडर करने हैं क्यूमुलेटिवली आरपीएफ, एनपीएस और सुपर एन्युएशन फंड तीनों के लिए। 7,50,000 जो आपको कंसिडर करने हैं वो तीनों के लिए कंसिडर करने हैं, आरपीएफ, एनपीएस और सुपर एन्युएशन फंड। तीनों का टोटल कंट्रीब्यूशन मिला के, तीनों का कंट्रीब्यूशन मिला के अगर 750 से एक्सीड कर रहा है देन दैट पार्ट वुड बी टैक्सेबल। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? नाउ सी प्रैक्टिकली अगर कोई सम में आपको दिया हुआ है, अगर कोई सम में आपको दिया हुआ है और उसमें रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में भी कंट्रीब्यूशन है, अगर उसमें रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में भी कंट्रीब्यूशन है, प्रैक्टिकली अगर आपको दिया हुआ है और अगर उसमें रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में भी कंट्रीब्यूशन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो आप पहले देख लो, आप पहले देख लो कि वो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन अप टू 12% ऑफ सैलरी है। अगर वो 12% ऑफ सैलरी से ज्यादा है तो जैसे पहले करते थे ऐसे उसको टैक्सेबल कर ही दो, ऐसे उसको टैक्सेबल कर ही दो। ऊपर का जो पार्ट है, मतलब मान लो 14% कंट्रीब्यूट कर रखा है तो रिमेनिंग 2% विल बी कंसिडर्ड एज टैक्सेबल, बट 12% इज ओनली देन एग्जम्प्ट। ठीक है, ओके। पर मान लो कि अप टू 12% है, अप टू 12% है और वॉट एवर इट इज, वो कंट्रीब्यूशन जो किया है वो है ₹2 लाख। आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन किया है वो है ₹2 लाख, तो 2 लाख यहां पे ऐड कर दो। फिर देखो कि एनपीएस में कितना कंट्रीब्यूट किया है, तो भाई आंसर आया एनपीएस में भी कंट्रीब्यूट कर रखा है 3 लाख। ओके, तो ये 3 + 2 5 लाख हो गए। तो अभी अगर सुपर एन्युएशन फंड में इतना कंट्रीब्यूट करता है कि जिससे ये सम टोटल एक्सीड 7,50,000, तो दैट एक्सीडिंग 750 विल बी कंसिडर्ड एज टैक्सेबल। सो अगर वो सुपर एन्युएशन फंड में अगर 2,50,000 तक कंट्रीब्यूट करता है तो वो 250 पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, 250 पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा। यस, और यहाँ पे जो मैंने 2 लाख लिखे आरपीएफ में, दैट मे बी कंसिस्टिंग ऑफ 12% और मोर देन 12%। यहाँ पे वो पूरी अमाउंट इंक्लूडिंग द टैक्सेबल वाली अमाउंट, पूरा कंट्रीब्यूशन यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, सो 2 लाख, 3 लाख और 250 तो कोई फिक्र नहीं है। पर अगर मान लो कि ये 2 लाख नहीं है, आरपीएफ का कंट्रीब्यूशन है 3 लाख, तो 3 + 3 6 और ये 250 हो गया अब 850। तो ये 250 में से 1 लाख जो है वो हो जाएंगे टैक्सेबल। समझ में आ रहा है इतना? क्यों? क्योंकि अभी तीनों का टोटल मिला के 750 से बढ़ रहा है। सो तीनों का टोटल, मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि ये 250 में से 1 लाख टैक्सेबल हुआ है। आप बोल दो कि सर फिर तो एनपीएस में ही डाला है, मान लो कि सुपर एन्युएशन फंड में कुछ कंट्रीब्यूट किया ही नहीं, सुपर एन्युएशन फंड इज 0 और एनपीएस में जो कंट्रीब्यूट किया है वही है 5 लाख और दिस इज नील, तो भी ये तीनों का मिला के कितना हो गया? मोर देन 750। यस, तो दैट 50,000 विल बी टैक्सेबल। इसका टोटल करो तो 8 लाख आ जाएगा। यस, तो दैट रिमेनिंग 50,000 इज डेफिनेटली टैक्सेबल। क्लियर? तो ये वाली प्रोविजंस तो एज इट इज ही है कि आपको आरपीएफ में देखना ही है कि 12% से ज्यादा नहीं हो रहा ना। नॉट ओनली दैट, आपको ये भी देखना है कि आरपीएफ प्लस एनपीएस प्लस सुपर एन्युएशन फंड तीनों का मिला के जो कंट्रीब्यूशन है वो एम्प्लॉयर का, तीनों का मिला के जो कंट्रीब्यूशन है वो एम्प्लॉयर का, वो 750 से एक्सीड नहीं हो रहा ना। अगर 750 से एक्सीड हो गया, 7,50,000 से एक्सीड हो गया तो रिमेनिंग पार्ट वुड बी टैक्सेबल। यस, दैट इज द अमेंडमेंट फ्रॉम सैलरी। आप यहाँ पे देखो तो उसका यही मतलब है। अभी आप मॉड्यूल में देखोगे तो आपको कुछ ऐसा दूसरी चीज भी जो है वो आपको देखने को मिलेगी, ऐसा दूसरा पार्ट भी आपको नया देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स की मुझे क्वेरीज आ रही है कि सर वो वाला अमेंडमेंट 750 वाला तो समझ में आ रहा है, बट ये क्या लिखा है कि एनुअल एक्रीशन टू द बैलेंस एट द क्रेडिट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एनपीएस, अप्रूव्ड सुपरएन्युएशन फंड विच रिलेटेड टू एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एंड इंक्लूडेड इन टोटल इनकम ऑन अकाउंट ऑफ द सेम हैविंग 7,50,000। सो सर ये वाला पार्ट जो मॉड्यूल में दे रखा है ये समझ में नहीं आ रहा। तो फ्रेंड्स ये और कुछ नहीं बता रहा, वो ऐसा बोल रहा है कि देखो आपके ये समझ में आ रहा है तो ये मैं बोर्ड से निकाल रहा हूं, अगर आपको किसी को लिखना है तो आप लिख सकते हैं ये, ठीक है। ये पार्ट सिर्फ इतना बता रहा है, ये पार्ट सिर्फ आपको इतना बोल रहा है कि जैसे अपना सुपर एन्युएशन फंड होता है,
सुपर एन्युएशन फंड होता है, आरपीएफ हो गया या फिर एनपीएस हो गया, ये सब एक टाइप के फंड है। तो वो क्या होगा कि वो एक पैसे जमा कर रखे हैं एम्प्लॉई के रिटायरमेंट के टाइम पे उसको देने के लिए, ठीक है ना। तो वो पैसे जो है वो ऐसे तो एम्प्लॉयर अपने यहाँ रखेगा नहीं, वो क्या करेगा, वो कोई अच्छी जगह उसको इन्वेस्ट करेगा, रिस्क फ्री उसको रिटर्न मिले ऐसी जगह, यस, तो उसमें से इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो जो ये फंड की बैलेंस है ना वो इंटरेस्ट के कारण भी बढ़ेगी, यस। तो ये पॉइंट ऐसा बता रहा है कि वो इंटरेस्ट जो मिलेगा, ये फंड में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट भी, आप देखो तो फंड में पैसे किस तरह से जाते हैं, तो फंड में पैसे दो तरह से गए होंगे, एक एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन से और दूसरा एम्प्लॉई के कंट्रीब्यूशन से। तो मतलब मान लो कि एक फंड में 20 लाख रुपए है, 20 लाख में से 10 लाख एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन है, 10 लाख एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, 10-10 लाख रुपए है। तो जो इंटरेस्ट मिलता है उसमें से कैन आई से दैट हाफ ऑफ द इंटरेस्ट इज बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, हाफ ऑफ द इंटरेस्ट इज बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। द आंसर इज यस। तो वह यही बता रहा है कि एनुअल एक्रीशन टू द बैलेंस, एक्रीशन मतलब क्या, उसमें क्या बढ़ोतरी हो रही है, मतलब उसमें क्या बढ़ रहा है, उसमें क्या इंक्रीज हो रहा है। तो जो इंक्रीज हो रहा है, इफ इट इज इंक्रीज कैसे होता है, कोई फंड में बैलेंस इंक्रीज कैसे होती है, तो वो होती है दूसरी अपार्ट फ्रॉम कंट्रीब्यूशन, वो होती है इंटरेस्ट से भी, यस। तो वो इंटरेस्ट जो है वो लग रहा है जो, वो उसमें से जितना एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन के पार्ट का इंटरेस्ट है वो भी आप 750 में ऐड कर दो। वो ऐसा बता रहे हैं कि वो भी आप 750 की लिमिट कंसीडर करने में ऐड कर दो। तो हमने जैसे ऐसा देखा कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आरपीएफ, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इन एनपीएस और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इन सुपर एन्युएशन फंड, इन तीनों का टोटल कर रहे हैं। उसमें आप एक चीज और ऐड कर दो, इन तीन में से किसी भी जगह पे अगर कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड कुछ मिला है और वो इंटरेस्ट या डिविडेंड जो है इट pertains to the employer's contribution part, वो इंटरेस्ट या डिविडेंड इट pertains to employer's contribution part, then if that interest जो मिला है कौन सा, ओनली एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट कर रखा है, उसके पार्ट का जो इंटरेस्ट या डिविडेंड वगैरह कुछ भी मिला, तो वो भी जो है वो इंटरेस्ट डिविडेंड कुछ भी मिला और सिमिलर नेचर की इनकम कुछ भी आई, वो भी आपको 750 की लिमिट में ऐड कर देनी है। तो मतलब उसको मिला के अगर 750 से एक्सीड हो रहा है, उसको मिला के अगर 750 से एक्सीड हो रहा है तो दैट अमाउंट विल आल्सो बी टैक्सेबल। क्लियर। सो ये पार्ट जो है वो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि एग्जाम में टेस्ट करेंगे अमेंडमेंट का, पर उसके पहले का जो पार्ट मैंने बताया आपको सैलरी का फर्स्ट पार्ट, जो बेसिकली हमने समझा कि आरपीएफ, एनपीएस और सुपर एन्युएशन फंड, इन तीनों का एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन का टोटल कर लो, वो 750 से एक्सीड हो जाए तो वो टैक्सेबल होगा। यस फ्रेंड्स, ये एक ही अमेंडमेंट है जो सैलरी में है। आपको अभी सुपर एन्युएशन फंड के लिए 1,50,000 एग्जम्प्ट वाली लिमिट याद नहीं रखनी है, आपको ये याद रखना है कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन एनपीएस एंड इन अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड, तीनों का टोटल करो और वो टोटल अगर हो जाता है 750 से एक्सीडिंग, सो अमाउंट एक्सीडिंग 7,50,000, वो अमाउंट हो जाती है एक्सीडिंग 7,50,000, सो अमाउंट एक्सीडिंग 7,50,000 विल बी टैक्सेबल। क्लियर। सो दिस इज द ओनली अमेंडमेंट इन सैलरीज। नाउ पीजीबीपी में भी एक छोटा सा अमेंडमेंट है, वो देख लेते हैं और फिर बाकी के अमेंडमेंट है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आपको बना के दूंगा। This amendment is from profit and gains from business and profession. If you remember your section of expenditure on scientific research section 35, जिसमें आपको साइंटिफिक रिसर्च के लिए अगर आप एक्सपेंडिचर करते हो, अगर आप इन हाउस करते हो या फिर अलग अलग जगह पे कंट्रीब्यूट करते हो, जो अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हो, तो आपको वेटेड डिडक्शन मिलता था। तो वो वेटेड डिडक्शन की परसेंटेज में इस बार चेंज आ गए। मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको यहाँ पे एक शीट बना के एक दे रखी है कि क्या चेंज हुआ है, कौन सी जो साइंटिफिक रिसर्च की सेक्शन है उसमें क्या चेंज हो गया, पहले कितना था और अभी उसमें कितना डिडक्शन मिल रहा है। तो आप देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है ओल्ड प्रोविजन डिडक्शन फॉर असेसमेंट ईयर 2021 और न्यू प्रोविजन विच इज डिडक्शन न्यू प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन फॉर डिडक्शन फॉर असेसमेंट ईयर 2021 और न्यू प्रोविजन विच इज डिडक्शन फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। सो ये जो है हम ये पूरा चार्ट देख लेते हैं। चलो यस। सो 5 अलग अलग जगह पे आप कंट्रीब्यूट करते थे और 5 अलग अलग जगह पे आप वी कैन से अपने पैसे डालते थे, तो आपको क्या मिलता था, आपको कंट्रीब्यूशन पे मिलता था डिडक्शन if the contribution was related to scientific research, whether related to assess his business or not,
मोस्टली जगहों पे ऐसा ही है कि वेदर रिलेटेड टू एसएससीज बिजनेस और नॉट। सो सबसे पहले एन अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन विच हैज एज इट्स ऑब्जेक्ट अंडरटेकिंग ऑफ साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड और अनरिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ एसएससी। यस, सेक्शन 35(1)(2 तो उसमें पहले मिलता था 150% डिडक्शन, अब वो मिलेगा 100% डिडक्शन। तो जितना कंट्रीब्यूट किया है उतना ही आपको डिडक्शन क्लेम करना है। पहले ऐसा होता था कि जितना कंट्रीब्यूट करे उसका 1.5 टाइम्स मतलब 150% हम डिडक्शन ले लेते थे। अब सिर्फ जितना कंट्रीब्यूट किया है, अब ऐसा हो चुका है कि जितना कंट्रीब्यूट किया है उतना ही डिडक्शन मिलेगा। Number 2, an approved university, college or other institution for use of scientific research related or unrelated to the business which is section 35(1)(2 उसका पहले 150% मिलता था, वो भी अब हो चुका है 100%। नंबर 3, ये जो है वो अप्रूव्ड एसोसिएशन और ये कॉलेज यूनिवर्सिटी है, बट वो लोग रिसर्च करते थे रिगार्डिंग सोशल साइंस और स्टेटिस्टिकल साइंस, तो उसका तो पहले भी 100% था, अभी भी 100% ही है, तो उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। पर ये सब प्रोविजन एक साथ कवर हो जाए इसलिए मैंने यहाँ पे डाल रखा है, ठीक है। फिर कंट्रीब्यूशन टू नेशनल लेबोरेटरी 35(2)(a) वो पहले मिलता था 150%, वो अब मिलता है 100% ओनली। सो और एक्सपेंडिचर ऑन इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस 35(2)(ab) जो भी पहले मिलता था 150%, वो अब हो चुका है 100%। तो फ्रेंड्स, आपके लिए तो अमेंडमेंट लाकर गवर्नमेंट ने आपके लिए तो अच्छा कर दिया है, फाइनेंस मिनिस्टर ने आपके लिए अच्छा कर दिया है, क्योंकि आपको पहले याद रखना पड़ता था कि कौन सी जगह पे 150 मिलता है, कौन सी जगह पे 100% मिलता है। मैं अपने स्टूडेंट्स को ऐसा बोलता था कि भाई सोशल और स्टेटिस्टिक्स में अपने को कम मार्क्स आते हैं तो हम 150% के बजाय उसमें कम डिडक्शन मिलता है, ऐसा कुछ गंदा पॉइंट बना के याद रख लो, ऐसा कुछ बुरा पॉइंट बना के याद रख लो, मतलब कुछ लॉजिक सेट करके याद रख लो। पर ऐसा भी अभी याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा भी अभी कोई याद रखने की लॉजिक याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं। आपके लिए अब फिनेंस मिनिस्टर ने बहुत अच्छा काम कर लिया है। अभी आपको वही याद रखना है कि भाई चलो कंट्रीब्यूट किया साइंटिफिक रिसर्च के लिए तो कितना डिडक्शन मिल रहा है, तो डिडक्शन मिल रहा है वो है 100%। दैट्स इट। क्लियर फ्रेंड्स? हाँ, इसमें वो इन हाउस रिसर्च वाला पार्ट नहीं है। अगर आप इन हाउस करते हो तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह का डिडक्शन मिलता था, हम ऐसा पढ़े लैंड का डिडक्शन नहीं मिलता वगैरह वगैरह। इन हाउस रिसर्च में रेवेन्यू में पिछले 3 साल तक का मिलता है, उसमें जो है वो एम्प्लॉई के सैलरी में परक्विजिट्स वगैरह दिया उसका डिडक्शन नहीं मिलता। तो वो प्रोविजंस तो एज इट इज़ है, उसमें कोई अमेंडमेंट है ही नहीं। तो वो तो आप लोगों को अपनी पुरानी बुक में से या पुराने जो आपने नोट्स बनाए हैं उसमें से ही आपको पढ़ना है। बट द ओनली थिंग दैट यू हैव टू चेंज इज दैट कि आपको ये जो डिडक्शंस वाली जो कंट्रीब्यूशन में वहाँ जहाँ पे 150% वाला वेटेड डिडक्शन था वहाँ पे अब डिडक्शन मिल रहा है, 150% के बजाय 100%। सो कंट्रीब्यूशन जो है कंट्रीब्यूशन है उसका पूरा उस कंट्रीब्यूशन है उसका पूरा डिडक्शन, अब पूरा मतलब लॉजिक वही है कि 100% आपको डिडक्शन लेना है। तो कंट्रीब्यूशन कहीं भी करो साइंटिफिक रिसर्च के लिए आपको डिडक्शन मिलेगा, वो है 100%। क्लियर है फ्रेंड्स? यस। सो I guess I am done with the amendment of PGBP also. In the next video, we'll be taking up with the amendments of other chapters and 115 BAC जो मैंने बोला कि जो सबसे बड़ा अमेंडमेंट है जिसके कारण बहुत सारे चैप्टर्स में भी छोटी जगह पे इफेक्ट आ रही है, अमेंडमेंट छोटा आ रहा है, वो मैंने अभी इसमें कंसिडर नहीं किया। 115 BAC की इफेक्ट के कारण जो सैलरी में या 1-2 अलाउंस ऐसे है कि अगर आप 115 BAC में जाओ 1-2 चीज़ें ऐसी है कि जो एप्लीकेबल नहीं होती, वो पॉइंट्स मैंने कवर नहीं किए। वो सारे पॉइंट्स में 115 BAC के साथ ही कवर करने वाला हूँ। तो अभी मैंने 115 BAC को छोड़ के जो पर्टिकुलर चैप्टर्स में अमेंडमेंट्स से वो अमेंडमेंट्स ही मैंने कवर कराया है। ऑल्टरनेट टैक्स रिजाइम वगैरह मैं अलग से वीडियोस देता रहूँगा आपको और अमेंडमेंट उसके आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स प्लीज़ वॉच दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, ड्रीमैक्स के स्टूडेंट्स हैं, दे कैन डायरेक्टली यस कॉल मी और टेक्स्ट मी और व्हाट्सएप मी। जो बाकी कोई स्टूडेंट्स देख रहे हैं यहाँ पे ये वीडियो देख रहे हैं तो दे कैन पुट देयर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। Okay friends, so with this note I am ending today's session, the first lecture of this amendment series. Okay friends, मिलते हैं next lecture में. Thank you everyone.